ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੇ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ तमाम ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਉਹ ਰੇਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੇਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰੇਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਪੇਜ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 18 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। आज दुनिया में कही जा रही भारत 5वीं बड़ी महाशक्ति ने कर इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 101 किसानों का जत्था था उसके ऊपर फिर बल प्रहार किया और पूरी दुनिया ने देखा कि दुनिया की 5वीं महाशक्ति पैदल जा रहे किसानों मजदूरों के ऊपर जिस तरह से बल प्रयोग कर रही है। जो दरिया के नीचे केमिकल वाला पानी है घग्गर दरिया का, इतनी सर्दी में जहां हाथ कांप रहे हैं उस पानी का प्रयोग किया और पानी तब फेंका गया जब डीसी अंबाला और एसपी अंबाला जो नेतृत्व कर रहे लीडर थे जसविंदर सिंह लौंगोवाल, मलकी सिंह जी गुलामी वाला, ओंकार सिंह जी पंगाला और हमारे तमिलनाडु के लीडर आर नंद कुमार। एक तरफ वार्ता करते हो, दूसरी तरफ पानी मारते हो। अब देश ये बताए हमने भी वायलेंस किन्होंने किया है। इसी के साथ साथ आज नई बातें सामने आई। हमारी स्टेज के ऊपर भी हंजू गैस के बम फेंके गए और हमारी स्टेज से आगे रॉकेट लॉन्चर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे जाकर भी एक गोला फेंका गया और
दूसरी ओर खेतों में भी हंजू गैस मारा गया। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या हो सकती है? लगभग 10,000 से ऊपर आम जनता आज शंभू मोर्चे को देखने आई थी, सपोर्ट में आई थी, लंगर लेकर आई थी। हमारे किसान मजदूर मोर्चे और एसकेएम नॉट पॉलिटिकल के किसान मजदूर तो थे ही यहाँ। पब्लिक के ऊपर फेंककर हंजू गैस उसे भड़काना चाहते थे। और देखा, जितने भी हमारे किसान मजदूर नौजवान यहाँ आए, उन्होंने हमारे जाब्ते में कोई भी बाधा नहीं डाली। कितना डिसिप्लिन से 101 का जत्था, एक भी आदमी उसमें से अधिक नहीं गया है। जो हमारे पास सूची आई है वो 17 किसान सरकार के इस जबर में, सरकार के इस बल प्रयोग में जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ किसान ज्यादा जख्मी हैं। मैं किसानों की लिस्ट आपके सामने दे रहा हूं। कुलदीप सिंह जी, ये हरिगढ़ गांव है, बीकेजू आजाद के साथी है। सुखदेव सिंह जी भूटान, बीकेजू आजाद के साथी है। शमशेर सिंह जी संगरूर, ये भी बीकेजू आजाद के साथी है। मुख्तियार सिंह जी खुराना, ये भी बीकेजू आजाद के साथी है। दर्शन खोखर लहरा, ये भी बीकेजू आजाद के साथी है। मीहा सिंह मंगवाल, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं। जगीर सिंह फौजी, जो बीकेजू बहराम के साथी, ये भी गंभीर जख्मी है। कुलदीप सिंह भी और ये भी। उसके आगे परमजीत सिंह जी हरदासपुरा, ये भी पटियाला से जख्मी है। अमनप्रीत सिंह जी, ये पटियाला से हैं, ये भी जख्मी है। इंद्रजीत सिंह जी, ये पटियाला से हैं, बीकेजू पनहेड़ी के साथी है, ये भी जख्मी है। राजकुमार टांडा हरियाणा से, बोलते अकेले किसानों के जत्थे हैं, हरियाणा से हमारे साथी ये जख्मी हुए हैं। सुखविंदर सिंह जी, ये गुरदासपुर से हैं, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथी हैं, इनका डेहरीवाल गांव है, ये जख्मी हुए। हजारा सिंह, ये पटियाला से बीकेजू पनहेड़ी के साथी हैं। साधु सिंह जी, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं, ये संगरूर से हैं, ये भी जख्मी है। सुखवंत सिंह गुरदासपुर, ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथी हैं। और आज आर अनंत कुमार, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु से आए थे, वो इस जत्थे की अगुवाई करते हुए तिरंगा हाथ में लेकर आगे जत्थे में गए थे, आपने देखा है। और इसमें हरियाणा के मनजीत सिंह, मुख्तार सिंह, ये भी जत्थे में शामिल थे। तो अन्य राज्यों के किसान भी आज के जत्थे में शामिल थे। आज भी हमें जवाब नहीं मिलेगा जो हम जवाब केंद्र से मांगते हैं। 100 आदमी का जत्था देश के अमन कानून के लिए किस तरह से खतरा है, इसका जवाब चाहिए। आप संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हो, कौन सा देश का संविधान किसानों के ऊपर इस तरह से बल प्रयोग करने का इजाजत देता है? आप संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हो, 1 साल से नेशनल हाईवे के ऊपर इस तरह से दीवारें बनाने का कौन सा संविधान आपको अलाउ करता है, ये भी बताओ। और उन सड़कों के ऊपर आप किलो की फसल उगाते हो, और ये कौन सा संविधान इसकी इजाजत देता, कम से कम हमें तो बताओ। लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मिलकर गेम खेल रहा है। और देश की पार्लियामेंट में हमारे किसान मजदूर के मुद्दे पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो रही है, और ये दुखद है देश के लिए। और हम देख रहे हैं, आज हमने देखा 140 करोड़ भारतीयों ने शंभू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की आवाज लगाई है। पूरे देश भर में, खनौरी बॉर्डर, पूरे देश भर में हमारी बात, हम बेशक बैरिकेड से आगे ना जा पा रहे हो, हमारी आवाज पूरे देश भर में जा रही। हर माँ, हर बहन, हर बेटी के पास हमारी आवाज जा रही है। लेकिन दुख की बात है, हमारे प्रधानमंत्री के कान कारपोरेट ने बंद करके रखे हैं। प्रधानमंत्री के कानों में हमारी आवाज नहीं जा रही है। जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, जो अमर अनशन पर बैठे हैं, उनके लिए देश चिंतित है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है। देश की सरकार को सत्ता का नशा है, वो नशे में चूर है, और देश के किसान मजदूर से बात नहीं करना चाहती। इसी के साथ साथ आने वाले समय में जो दोनों फोरमों ने निर्णय लिया है, एक तो 16 को
ट्रैक्टर मार्च होगा, पंजाब को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में होगा। और दूसरा 18 तारीख को 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 18 दिसंबर को 12 बजे से लेके 3 बजे तक पंजाब में केवल पूरी तरह रेलें जाम की जाएंगी। और हम पंजाब के पूरे किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, रेडी फड़ी वाले, विद्यार्थी, मुलाजम, सभी तबकों को अपील करते हैं, अगर ये मोदी जी का प्रहार रोकना है, अगर जगजीत सिंह डलेवाल का जो अमर अनशन है वो मांगे पूरी करे, जीत में मोर्चे को बदलना है, उठिए। 3 करोड़ पंजाबियों, आपको ये चैलेंज है, कोई भी पंजाब का कोना नहीं छूटना चाहिए जहां रेले जाम नहीं होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां प्लेटफार्म हो, जहां रेल का फाटक हो, वहां पर रेल जाम करने के लिए आप जाइए, अन्यथा जगह पे जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। रेल स्टेशन के ऊपर और रेल फाटक के ऊपर जो है ये रेलें जाम होगी। और हम लोग कल भी आपको अपील करेंगे 11 बजे पीसी करके, जो भी गंभीर जख्मी है, कुछ हमने और भी आपसे बात करनी है, तो कल 11 बजे शंभू पर पीसी होगी। फिर हम खनौरी भी जाना चाहेंगे वहां की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए। कल जरूर आप आए, अभी नहीं पीसी होने दीजिए, सभी बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए, ठीक है। हाँ, रेल रोको अकेला पंजाब में होगा, ट्रैक्टर मार्च पंजाब से बाहर के अन्य राज्यों में होगा, अभी सभी को बोलने दीजिए। मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा, इनके ऊपर एक्सपायरी डेट है भाई, ठीक है जी, एक्सपायरी डेट है, ये 2023 के है, ठीक है। हाँ ठीक है जी, ये किसानों के ऊपर मारे गए हैं जी, अल्लाह जी, ये 1 साल से ऊपर एक्सपायरी ये क्यों करते हैं? कल को अगर कोई कमीशन बैठ के इसकी जांच करेगा तो ये सरकार के रिकॉर्ड में पाए नहीं जाएंगे। मोदी जी के हथकंडे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये रिकॉर्ड में होंगे नहीं, ठीक है। रिकॉर्ड चेक करेगा ना कोई कमीशन, फिर किसानों के ऊपर बल प्रयोग करने के लिए क्या किया गया। तो ये देखिए, अनलीगल तौर पर जो संविधान दिवस है, अब संविधान को सिक्के पर टांग कर क्या किया जा रहा है, ये देखिए, ये जो कल आपको दिखाया था पिन निकाल कर जो बम फोड़े जाते हैं किसानों के ऊपर, ये सब उन्हीं की तस्वीरें हैं। रबड़ की गोलियां आज बहुत जोर से चलाई गई, ठीक है, वो पानी के बहाव में बह गई, वो भी हम उपलब्ध करा देंगे। अभी हमारा जत्था थका हुआ है, पानी से भीगा हुआ है, वो अपने आराम के लिए गया हुआ है। और ये आज का घटनाक्रम